डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से संबंधित है। कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में हम सम्मिलित करेंगे, उन पर यदि कोई डिडक्शन मिल सकता है तो वो कितना डिडक्शन मिलेगा, ये उस क्वेश्चन से हम लोग समझ पाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री शेखावत, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21. First point दिया हुआ, on 1st September 2019 the amount of consideration received on the sale of house property purchased in 1987-88 was rupees 12 lakhs. The cost of acquisition of this house was rupees 1,80,000, but the fair market value of the same on 1 April 2001 was rupees 4 lakhs. The expenses incurred in respect of its sales were rupees 1,500 for brokerage, 560 for stamps and 200 for lawyers' fees. Before this, he entered into an agreement in August 2013 and April 2019 for the sale of his house and received rupees 50,000 and 4,20,000 respectively as advance. The agreement was cancelled and these advances were forfeited by Mr. Shekhawat. Second point is, as the director of Jaipur Glass Works, he is to receive rupees 80,000 per month as salary and rupees 30,000 per month as entertainment allowance. The facility of 16 HP motor car has been provided by the company. Expenses which for personal use are borne by him. He uses this car for the company purpose. He himself drives the car. The written down value of the car is 5 lakhs. As the director of State Bank of India, he received rupees 4,50,000. Fourth point, income received from agricultural land in Nepal 4,50,000. Income received from piece of land in Amritsar which is not adjoining to the house and which has been let out for storing the coal, rupees 40,000 per month. Income from other land on rent of holding market 80,000. He incurred expenses amounting rupees 5,000 in respect of rental income. Fifth point, he gets rupees 52,000 per month as a family pension from the non-government employee of his deceased father from the date of death of his father. His father expired 30th October 2018 and his employer paid rupees 1 lakh as ex gratia on the said event during the previous year. Sixth point, received a car worth rupees 6 lakhs and 11 lakhs 50,000 in cash in respect of winning from a lottery. Seventh point, received rupees 2 lakhs 10,000 in respect of winning quiz contest organized by the Doordarshan and received rupees 3 lakhs 50,000 for winning from the horse race. Eighth point, he is working an LIC agent and received rupees 28,500 and as commission. He is also an authorized agent of selling PPF, NSC units, etc. During the previous year, received commission rupees 26,940 from the government. He does not maintain any record of expenses. Ninth point, he got 51,000 as a gift from his father-in-law and his friends separately from each on the occasion of his 25th marriage anniversary. He also got 60,000 equally contributed by his two business partners on the same occasion. 10th point, he got one house property of his friend on 28th December 2019 free of cost. The stamp duty value rupees house is 10 lakhs. Ornaments worth rupees
1 lakh were found in previous year in the bank locker. Its source of investment could not explained by the him. तो ये 11 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी मदें सम्मिलित होंगी, क्या कोई उन पर डिडक्शन भी हम इनकम कैलकुलेट करते समय घटा सकते हैं क्या, और लास्ट में हमको ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करनी पड़ी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन में रेजिडेंशियल हाउस इसको बेचा आपने, तो क्या इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के बजाय यहाँ पर टैक्सेबल हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी क्या, ये कंसिडर करना है। डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है, डायरेक्टर को सैलरी क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी या अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, ये देखना है। हमने अपने लैंड को किराए पर दे रखा है, तो लैंड क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है या यहाँ पर टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में, ये जज करना पड़ेगा। फैमिली पेंशन, कमीशन, ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी या अदर सोर्सेज, ये हमको तय करना है। इस क्वेश्चन में कुछ गिफ्ट मिली हैं, कुछ अमाउंट हमने फॉरफिटेड की है, आपको ये बताना है कि ये इनकम इस हेड में सम्मिलित होगी या नहीं होगी। फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में आपको पहली जो सूचना दी हुई है, मैं एक बार हिंदी में उसको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन था क्या। 1987-88 में 1,80,000 में क्रय किए गए मकान को 1 सितंबर 2019 को विक्रय करने से 12 लाख प्राप्त हुए। 1 अप्रैल 2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 4 लाख रुपये था। विक्रय पर दलाली 1500 रुपये, मुद्रांक शुल्क 560 रुपये, वकील की फीस 200 रुपये के हुए। इससे पूर्व उन्होंने 1 अगस्त 2013 और अप्रैल 2019 में बेचने का अनुबंध किया था। दोनों बार व्यवहार रद्द हो गया और पहली बार अग्रिम 50,000 रुपये और दूसरी बार 4,20,000 रुपये दोनों उन्होंने जब्त कर ली। स्टूडेंट देखिएगा, इस क्वेश्चन में संपत्ति जो हाउस प्रॉपर्टी बेची है उससे कुछ पैसा अग्रिम मिला है। ये अग्रिम मिला 2014 से पहले। तो ये 2014 से पहले यदि कोई राशि जब्त की जाती है तो यह राशि उस वर्ष की आय नहीं मानी जाएगी, परंतु जब कभी भविष्य में संपत्ति को विक्रय किया जाएगा तब यह राशि उस लागत में से घटा दी जाएगी। अतः इस आधार पर मकान की लागत जो 1 अप्रैल 2000 को उचित बाजार मूल्य है उसमें से घटाकर हम आय ज्ञात करेंगे। यानी अप्रैल में 2000 में 4 लाख रुपए है, इसमें से एडवांस मिला 50,000 रुपये, ये घटा दीजिएगा 3,50,000 रुपये, ये इनकम हो जाएगी हमारी इस प्रॉपर्टी से। इसके साथ और सूचना दी हुई आपको, यदि 2014-15 इसके पश्चात किसी वर्ष की जब्त की जाती तो मकान की लागत उस सीमा तक उसी गत वर्ष की अन्य साधन की आय मानी जाएगी। और ऐसी जो राशि प्राप्त हुई है, प्रश्न में कहा गया 4,20,000 रुपये, मकान की लागत है 3,50,000 रुपये, तो 3,50,000 रुपये इस हेड में इनकम मानी जाएगी। 70,000 रुपये जो डिफरेंस अमाउंट है वह आय नहीं मानी जाएगी। तो हम जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब ये जो पैसा मिला हमको एडवांस मनी फॉरफिटेड 3,50,000 रुपये, यह अमाउंट हम अदर इनकम में शो करेंगे। एडवांस मनी फॉरफिटेड 3,50,000। और जो रेजिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन पर जो कैपिटल गेन मिला हमको, यह हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है बल्कि कैपिटल गेन से संबंधित है। तो कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा बल्कि इसको अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको सम्मिलित करेंगे। तो इसी का सेल्स कंसिडरेशन है इसका 12 लाख 12 लाख। इसमें से इसकी इंडेक्सिंग कॉस्ट घटा दीजिएगा। इंडेक्सिंग कॉस्ट 3,50,000 जैसे मैंने आपको अभी बताई है। इसका वर्तमान में इंडेक्स वैल्यू है 289, तो 3,50,000 इंटू 289 अपॉन 100 ये 10,11,500 आएगी। इसके साथ जो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर हुए वह भी कम कर दीजिएगा। तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में हमने 1,500 रुपये प्लस 560 रुपये प्लस 200 रुपये कुल 2,260 रुपये खर्च किए गए हैं। तो 2,260 रुपये इसमें से कम कर दीजिएगा।
तो 12 लाख में से 10,13,760 रुपये कम कर देंगे तो ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा 1,86,240। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये हमारा 1,86,240 होगी। अब हम देखते हैं हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कौन कौन सी हैं। तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो गया। अदर सोर्स में जो सैलरी मिली है, डायरेक्टर का संबंध कभी भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नहीं होता है, और जब हम सैलरी हेड में कोई भी सैलरी टैक्सेबल करते हैं तो दोनों के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का संबंध होना आवश्यक है। इसलिए डायरेक्टर को जो सैलरी मिल रही है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड की जाएगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डायरेक्टर को जयपुर ग्लास वर्क्स के संचालक रूप में जो पैसा मिल रहा है वो 80,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो 80,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से, तो 9,60,000 रुपये ये टैक्सेबल होगा जयपुर ग्लास सैलरी के रूप में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 9,60,000 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसको मिला 30,000 रुपये, 30,000 रुपये दीजिएगा। कार की फैसिलिटी के लिए ड्राइवर को नहीं मिला है तो 600 रुपये पर मंथ ये उसकी इनकम मानते हैं हम परक्विजिट्स की। तो 600 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200 अमाउंट आ जाएगी। इसके अतिरिक्त उनको जो पैसा मिला है वो पैसा मिला है एक SBI के अंदर का वो डायरेक्टर हो रहे हैं, 4,50,000 रुपये मिल चुका है उनको, यानी इस पर टैक्स भी कटा है। तो ये अमाउंट ग्रोसअप कर दीजिएगा 4,50,000 इंटू 100/90, तो ये 5 लाख अमाउंट आएगी। अब हमारे पास में सैलरी हेड में टोटल कर लीजिएगा 9,60,000 प्लस 30,000 प्लस 7,200 प्लस 5 लाख, टोटल 14,97,200। यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सैलरी की मद के अंतर्गत टैक्सेबल होगी 14,97,200। अब देखिएगा कि आपको जो अगली सूचना दी हुई है वह सूचना दी हुई है कि उसकी नेपाल में कृषि भूमि है 4,50,000 रुपये की। उनके पास में अमृतसर में खाली भूमि है जो मकान से संबंधित नहीं है, वो गोदाम के रूप में 40,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करते हैं। उनकी एक भूमि और है जो किराए पर दे रखी है 80,000 रुपये। इनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने 5,000 रुपये व्यय भी किए हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड ये पूरी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 4,50,000 रुपये। आपको रेंट मिल रहा है 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 4,50,000 रुपये अमृतसर की लैंड से मिला और मार्केट से मिला जो आपके बाज़ार में ज़मीन है उससे 4,80,000। इनमें से जो खर्चा किया 5,000 रुपये वो कम कर दीजिएगा, तो 4,80,000 प्लस 80,000 5,60,000, 5,000 कम कर दीजिएगा इसके अंतर्गत, तो 5,55,000 यह आपको पैसा मिल गया रेंट से। तो नेपाल के लैंड से पैसा मिला आपको और इंडिया की लैंड से आपको पैसा मिला जो आपने किराए पर उठा रखी है। दोनों अमाउंट आ गई, ये 5,55,000 भारत से और नेपाल से 4,25,000 ये इनकम फ्रॉम लैंड रेंट से हो गई आपकी। अब आपको एक फैमिली पेंशन और मिली है। एक बात ध्यान रखिए, जो एक्स-ग्रेशिया पैसा प्राप्त होता है वह टैक्सेबल नहीं होता। जो 1 लाख रुपये उनको एक्स-ग्रेशिया मिला है वो टैक्सेबल नहीं है। उनको जो पेंशन मिली है वो पेंशन टैक्सेबल होगी 52,000 पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से 6,24,000, और यहाँ पर 15,000 रुपये उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 15,000 रुपये ये घटा दीजिएगा, तो 6,09,000 रुपये ये फैमिली पेंशन उनके लिए टैक्सेबल होगी। अब उनको कोई लॉटरी से भी मिली है इनकम, हॉर्स रेसेस से मिली है, तो ये कैजुअल इनकम मानी जाती है। तो कैजुअल इनकम हेड की जो अपना सब टाइटल है उसमें इसको टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो उनको लॉटरी के रूप में 6 लाख और 11,50,000 ये काट, और लॉटरी से कुल मिला के 17,50,000 रुपये लॉटरी की इनकम हो गई, 17,50,000 रुपये। लेकिन इस पर 30% टैक्स भी कटता है, इसलिए ग्रोस अप अमाउंट निकालने के लिए 17,50,000 इंटू 100/70 करेंगे हम, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 25 लाख। इसी तरह क्विज कॉन्टेस्ट में उनको 2,10,000 रुपये मिले, तो इसको भी ग्रोसअप कर दीजिएगा, इस पर 30% टैक्स कटता है, तो 100/70 तो 3 लाख आ जाएगी। हॉर्स रेसेस को 3,50,000 मिले, इसको भी ग्रोसअप कर दीजिएगा 100/70 से, तो 5 लाख आ जाएंगे। इस प्रकार टोटल जो आपकी कैजुअल इनकम है
वह 33 lakhs हो गई। लॉटरी, क्विज और हॉर्स रेंट। अब आप देखिएगा आपको जो पैसा मिल रहा है कमीशन का भी और मिल रहा है, तो ये कमीशन बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम के अंतर्गत वह आपको रेगुलर पैसा मिलता है, आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तब पैसा मिलता है। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, तो आपको कमीशन के रूप में जो पैसा मिला है वह भी यहाँ पर टैक्सेबल कर दीजिएगा आप। तो आपको जीवन बीमा एजेंट के रूप में 28,500 मिले और पीपीएफ के रूप में 26,940 रुपये मिले। तो 28,500, 26,940 दोनों संयुक्त रूप से मिल रहे हैं, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर वह 20,000 के स्थान पर 30,000 रुपये आप रेगुलर खर्चों के कटौती के रूप में घटा सकते हैं। तो आपको 28,500 रुपये LIC एजेंट 5% TDS करता है, ग्रोसअप कर दीजिएगा। 28,500 इंटू 100/95 30,000 आ जाएंगे। पोस्ट ऑफिस आपकी कटौती नहीं करेगा TDS के रूप में, तो आपको 30,000 तक कटौती नहीं होती है, इधर 26,940 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो 30,000 से ज़्यादा होने पर TDS काटते हैं, तो यहाँ पर TDS नहीं काटेंगे। 26,940 रुपये टोटल, 26,940 प्लस 30,000 56,940 कमीशन के रूप में मिला। इसमें छूट कितनी मिलेगी आपको? तो 30,000 जो आपकी है उसमें 1/3 तो LIC एजेंट का पैसा कम कर दीजिएगा 10,000 रुपये, और PPF पर जो पैसा मिला उसका 50% कम कर दीजिएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 23,470 रुपये। तो ये 23,470 रुपये अधिकतम 30,000 रुपये तक घटा सकते हैं। तो 33,470 रुपये ये कमीशन के रूप में टैक्सेबल हो जाएंगे हमारे। अब देखो उसको गिफ्ट मिली है, फ्रेंड से गिफ्ट मिली है उनकी एनिवर्सरी पर 51,000 की, उनको गिफ्ट मिली है बिजनेस पार्टनर से 60,000 की, उनको एक मकान गिफ्ट मिला है 10 lakhs का। तो ये तीनों टैक्सेबल हैं। फ्रेंड से राशि जो गिफ्ट मिला वो भी टैक्सेबल है, ग्रोसअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि TDS नहीं करता इस पर। आपको बिजनेस पार्टनर से गिफ्ट मिला और एक 10 लाख रुपए का आपको एक मकान मिला है। किससे मकान मिला? फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त से, तो ये भी आपको टैक्सेबल होगा। अब आपने शुरू में देखा था, हमने जब हाउस प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट पढ़ा था वहाँ पर आपको 3,50,000 रुपये अमाउंट फॉरफिटेड की थी। उसकी लागत तक 4,20,000 मिले थे, उसमें से आप ये अमाउंट फॉरफिटेड कर ली तो 3,50,000 रुपये ये अमाउंट टैक्सेबल हो गई। और अनडिस्क्लोज सोर्सेज से भी आपको 1 लाख मिल गया, तो ये भी अमाउंट टैक्सेबल हो गई। तो एडवांस फॉरफिटेड 3,50,000 ये टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज ये भी टैक्सेबल है 1 लाख। इन सब का आप टोटल कर लीजिएगा तो ये टोटल आ जाएगा आपको कैपिटल गेन का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, इन सब का टोटल मिला कर करें तो ये 81,91,910। यह है मिस्टर शेखावत की असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए टैक्सेबल अमाउंट होगी। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस मिस्टर शेखावत की कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से राशि कैलकुलेट की है। आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, मैंने वर्किंग नोट में कुछ बातें लिखी हैं, वो भी आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा। जो कैलकुलेशन किए हैं वही वर्किंग नोट है हमारे, तो उनको एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आइएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।